اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ 2413 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ 399 قبل مسیح یونان کے قدیم شہر ایتھنز کے ایک عقوبت خانے میں قید ایک 71 سالہ بوڑھے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کہ عدالت کے مطابق اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق زہر پینے کے بعد بھی وہ سوتا نہیں ہے اور کال کوٹھڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ بالآخر وہ زمین پر گرتا ہے، جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ نہ سکے۔ اس کا ایک دولت مند دوست کرائٹوس ساتھ کھڑا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روک دیا تھا۔ مرتے وقت وہ بوڑھا شخص کرائٹوس سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفا دینے والے دیوتا پر ایک مرغے کی قربانی دی تھی، اس کا قرض ادا کرنا مت بھولنا۔ یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا ابدی نیند سو جاتا ہے۔ اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معاہدے کے تحفظ کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کا ایک تاریخی استعارہ بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم استدلال کا بانی اور کائنات میں ویلکٹزم کے فلسفے کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس پسندیدہ چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کے زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی مرد میدان کے فلسفے کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، سقراط دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم ہے۔ اس کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور مابعد فلاسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت دی، تاہم اپنے علم کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کسی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی اور سقراط نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ ناظرین گرامی، سقراط 944 قبل مسیح میں یونان کے معروف شہر ایتھنز کے محلے ایلوپیک میں ایک سنگ تراش سوفرونکس نامی شخص کے گھر پیدا ہوا۔ ایک دوسرے حوالے کے مطابق وہ ملک یونان کے صوبہ ایٹیکا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ سقراط کی والدہ کا نام فناریٹی تھا، جو کہ ایک داعیہ تھی۔ والدین نے اپنے بیٹے کو علم ہندسہ، فلکیات، موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم دلوائی، نیز آبائی پیشہ سنگ تراشی میں بھی مشق بہم پہنچائی۔ فلسفے کی تعلیم سقراط نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی۔ سقراط ابھی 30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا۔ اس مصروفیت کی وجہ سے وہ باہر بہت کم نکلتا۔ لوگ خود چل کر اس کے پاس آتے، سوالات پوچھتے، جواب پاتے اور یوں تبادلہ خیالات سے علم میں اضافہ کرتے۔ اس کی پہلی شادی جوانی میں ہی میرٹو نامی خاتون سے ہوئی تھی، مگر جلد ہی وہ کسی مرض کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد سقراط نے ایک لمبے عرصے تک شادی نہیں کی، اور جب عمر عزیز 50 برس کی ہوئی تو اس کی شادی ایتھنز کی ایک مشہور خاتون زینی تھیپس سے ہوئی۔ اس شادی کی رودات بڑی دلچسپ ہے۔ سقراط سے اس کے شاگردوں اور دوستوں نے ایک بار شادی کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ضرور شادی کرے اور اولاد بھی پیدا کرے،
क्योंकि कानून कुदरत की पाबंदी इसमें है, मगर मैं ऐसी औरत से शादी करने का ख्वाह हूं जो निहायत सख्त, बदमिजाज और शरीर हो, ताकि दुनिया में एक नमूना कायम करूं कि अच्छे मुतहम्मल इंसान हर किस्म की सख्त तबीयत औरत को भी राम कर लेते हैं। चुनांचे उसी दिन से उसके रफीक और तुलबा ऐसी औरत को तलाश करने लगे। खुद सुकरात ने ऐसी ही औरत के लिए यूनान में एक इश्तिहार दिया। चुनांचे कुछ अरसे बाद एक छोटे से कस्बे का एक दौलतमंद जमींदार सुकरात के पास आया और उसे कहने लगा कि मेरी एक ही लड़की है, मैंने उसको निहायत नाजो नौम और लाड से पाला है, मगर वो तफलियत से ही ऐसी सरकश, तुंद मिजाज और लड़ाका हो गई है कि हर बात में उल्टा ही चलती है और बहुत ही बदजुबान है। सुकरात ने इस शर्त पर शादी करने की आमादगी का इजहार किया कि आप हमें एक पैसा तक नहीं देंगे। लड़की की उम्र भी 53 साल हो चुकी थी और यूनान में कोई शख्स उससे शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो एक बाहिम्मत खातून थी। सुकरात अपनी बीवी की सख्त मिजाजी के बारे में कहता था कि इसकी हर किस्म की वाही तबाही से मेरे अंदर जब्त की कुव्वत पैदा होती है। इसकी लानत मलामत से मैं अपने ज़र्फ का इम्तिहान लेता हूं। मैं देखता हूं कि क्या इसकी किसी कड़वी बात से मुझे गुस्सा तो नहीं आता। इसके लड़ने और झगड़ने से मैं अपने हौसले का अंदाजा लगाता हूं। वो चिंगारी से शोला बन जाती है और मैं बर्फ का डाला बना रहता हूं, और बिलाखिर वो खून का दबाव बढ़ जाने के बायस बेहोश हो जाती है। मैं उसको पानी पिलाकर होश में लाता हूं तो वो मेरी बेहद ममनून होती है और मुझसे माजरत करने लगती है। ज़ैनी मेरा इलाज है और वो मेरे लिए एक रहमत है। वो मुझ में इल्म का गरूर पैदा नहीं होने देती। वो मुझे जमीन पर रखती है, मुझे एहसास दिलाती है कि सुकरात एक आम इंसान है। वो मुझे मेरी औकात में रखती है। ज़ैनीथिपी के बदन से सुकरात के 3 बेटे पैदा हुए। सुकरात की वफात के वक्त बड़ा बेटा जवान था और छोटा बहुत छोटा था। फौजी खिदमात के जमाने में सिर्फ यही नहीं कि सुकरात ने बहादुरी के जौहर दिखाए, बल्कि वो मौसम की खराबी और तकान की भी बिल्कुल परवाह न करता था। उसने एक सिपाही की हैसियत से बहुत बड़ा नाम कमाया। उसे अवाइल उम्री में ही बाख्तजाए आईने मुल्की फौज में भर्ती होना पड़ा। लड़ाई से फरागत के बाद उसने अपनी वज़ाकता तब्दील कर ली। खाने पहनने और तबीयत में सादगी आ गई। इस कदर के बाद में जंग के मैदान में भी वो कंधे पर गडड़ी उठाए नंगे पांव रहता। वो फलसफियाना बातें करने लगा था। हम वतनों को पाबंदी मजहब की ताकीद करता। रफ्ता रफ्ता हकीमों की एक कसीर जमात उसके ख्यालात से फायदा उठाने लगी। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। उसके सवालों जवाबात की पहली तहरीर उसके एक दोस्त साइमन की है। साइमन पेशे के लिहाज से मोची था। सुकरात उसकी दुकान पर बैठा करता था। लोग वहां आते और सुकरात से सवाल करते, वो जवाब देता। साइमन चूंकि पढ़ा लिखा था, वो इस सारी गुफ्तगू को लफ्ज ब लफ्ज लिख लिया करता था। शायद साइमन की दुकान पर बैठने की वजह से ही कई मुहक्किकीन ने सुकरात को मोची लिखा है, जो कि सही नहीं है। सुकरात आजादी फिक्र और आजादी राय का अलमबरदार था, मगर वो जमहूरी तर्ज हुकूमत के चंद एक असूलों से सख्त इख्तिलाफ रखता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जमहूरी हुकूमत के कुछ लीडरों ने मजहबी पेशवाओं के साथ मिलकर सुकरात के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करवाया था। 993 कबल मसीह में एथेंस के हुकाम ने सुकरात के खिलाफ ये इल्जाम लगाए कि वो पुराने देवताओं की परवाह नहीं करता, बल्कि नए देवताओं को मुतारिफ करवा रहा है, नौजवानों के इखलाक खराब कर रहा है, नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है और मजहब में इख्तिलात वगैरह पैदा कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब अदालत लगाई गई तो सुकरात ने अपना मुकदमा खुद लड़ा और तमाम मुखालफीन की जुबानें बंद कर दी। सुकरात ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, दलाइल पेश किए, लेकिन मुआजरत की और ना ही जिंदगी की भीख मांगी। अदालत में उसकी बातचीत हमारी तारीख का हिस्सा है। नाज़रीन गिरामी, ये गुफ्तगू बड़ी पुरमगज, फलसफियाना और इखलाकियात के हवाले से अपनी मिसाल आप है। इससे हम उसकी इंसाफ पसंदी, जुरत, अना, सच्चाई और साबित कदमी का अंदाजा लगा सकते हैं। सुकरात को इल्म हो गया था कि शायद हुकूमत के ईमा पर अदालत ये फैसला दे दे कि इस मुजरिम को मुल्क बदर कर दिया जाए। लिहाजा उसने फैसले से कबल ही अपना फैसला सुना दिया और वहां मौजूद अफराद को मुखातिब करते हुए कहा, मैं अगर मौत के खौफ से जिलावतनी कबूल कर लूं तो साबित होगा कि मैं जिंदा रहने की ख्वाहिश में अंधा हो चुका हूं।
हरगिज नहीं, मैं ईथन्स छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं सदाकत की मौत मरकर ईथन्स में दफन होना ज्यादा पसंद करूंगा। सुकरात ने अपना फैसला सुना दिया तो उसे फौरी तौर पर जेल में डाल देने का हुक्म सादिर कर दिया गया और साथ ही उसकी मौत का फैसला इस तजवीज के साथ किया गया कि उसे जहर का प्याला पिलाया जाए। सुकरात ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन दोस्तों से बातें करने में गुजारा। उसे जेल से भगा ले जाने का मंसूबा भी बनाया गया जो कि कामयाब भी हो सकता था, लेकिन उसने ईथन्स में ही मरने को तरजीह दी। आखिरकार शाम के वक्त सुकरात जेल के दारोगा को आवाज देता है कि लाओ जहर का प्याला, हम अपना विसाल चाहते हैं। दारोगा जहर का प्याला लाता है। सुकरात हाथ में लेकर उसे जमीन पर रखते हुए दारोगा से पूछता है कि क्या इस मशरूबे अजल के चंद कतरों को जमीन पर गिरकर खुदा की नजर किया जा सकता है। दारोगा जेल जवाब देता है, हम इस प्याले में उतना ही जहर लाते हैं जितना एक इंसान को खत्म करने के लिए दरकार होता है। सुकरात दुआ मांगने के बाद प्याला उठाकर मुंह से लगा लेता है और खाली करके जमीन पर रख देता है। फिर मौत की कोठड़ी में टहलने लगता है ताकि जहर का असर जिस्म में फैल जाए। सुकरात का एक शागिर्द आपोलोडोरस चीख उठता है। उसे और सुकरात की बीवी ज़ैनीथपी को बाहर निकाल दिया जाता है। सुकरात अपने दोस्त क्राइटो से कहता है, मैंने एक्लोवियस यानी शफा के देवता का एक मुर्ग उधार देना है, वो दे देना। और फिर 993 कबल मसीह में अब्दी नींद सो जाता है। नाज़रीन गिरामी, सुकरात के खूने नाहक से अहले ईथन्स को बाद में सख्त पशेमानी हुई और उसके दुश्मनों को निहायत जिल्लत के साथ अपनी बेवकूफ़ी और अदावत के खमियाजे भुगतने पड़े। मौत इंसान को दी गई नेमतों में से बड़ी नेमत है। सुकरात के अकवाले ज़र्री का इदराक सच्ची दानाई है। शादी हर सूरत में करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए तो खुशी मिलेगी और अगर बुरी मिले तो आप फिलासफर बन जाएंगे। हमारी दुआ हर एक की भलाई के लिए होनी चाहिए। खुदा बेहतर जानता है कि हमारे लिए बेहतरी किस चीज में है। मैं अक्लमंद तरीन इंसान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। गलत अल्फाज अपने अंदर बुराई छुपाए रखते हैं और रूह को इस बुराई से मुतासिर कर देते हैं। काने इंसान मालदार तरीन होता है क्योंकि कनात कुदरत का एक तोहफा है। अपना वक्त दूसरों की तहरीर से इल्म हासिल करने में लगाओ क्योंकि तुम वो बात आसानी से हासिल कर लोगे जिसके लिए दूसरों ने बेइंतहा मेहनत की है। दोस्ती के मामले में एहतियात बरतो, लेकिन जब दोस्ती हो जाए तो इस पर मजबूती से कायम रहो। बेकार लोग खाने पीने के लिए जिंदा रहते हैं जबकि कारामद लोग जिंदा रहने के लिए खाते पीते हैं। दुनिया को मुतहरक करने के लिए इंसान को खुद मुतहरक होना चाहिए। मौत इंसान को दी गई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। नाज़रीन गिरामी, ये थे उस मर्दे दाना के चंद अकवाल जो आखिर में हमने आपकी नजर की। उम्मीद है कि आपको भी इन अकवाल से बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।